Okay. So first we have to write an introduction. Introduction is nothing but we take from the question and the diagram and we just paraphrase what the question is about. So like here, one thing I want to just emphasize, please mention the name of the graph. For example, I'm doing the line graph. Even if the question does not mention the word line, you mention that. And there's a reason for that. In the question, we have the diagram, but when we are writing the answer, there is no diagram. The examiner won't see the diagram. He'll just see the written statement. So we have to inform him that it's a line graph. That's the only place that I write this. I don't write it at any other place. That's the name of the graph. So at the beginning of the introduction, I write it. So the line graph illustrates, and then I just copy paste. I don't change much here. The number of inquiries to the Tourist Information Office made by 3 methods from this period to this period. So simple. The number of inquiries are made by 3 different methods, or you can write the name made by telephone, um, by email and letter/letter. There's And one question. Do we have to write introduction, the word? We have to mention specify the word oh, intro. no. That's Oh, just from just Jan. that is just for our okay. Yeah. Okay. So that's it. So after that, we have to write an overview. This is the two features we have to give an idea what the main features are. See, there's Okay. a part of the question that says report the main features. This is something that we do in the overview. For me, Yeah. pattern is first the introduction, then the overview. And what we discussed, we write in the overview. We write two features in the overview. So the first feature we write is about the maximum or the trends, and the second is about the other one. Like you have to write two features here. So just a quick revision. The first feature, you can either make it the maximum one or the trends one, and the second feature would be the other one, whatever you write. Like we wrote yesterday here, the maximum inquiries, if you remember, we wrote which one was the maximum. We wrote till March, the maximum inquiries were made by telephone, while after March, the maximum inquiries were made in person. So that is what I end up writing in the first sentence. And in the second sentence, I write the trends that the inquiries made by telephone and in person increase and inquiries made by email and letter decreased. So I hope it is clear. This has to come. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Once we've Mm. written the overview, then we have to write the body paragraph in detail. Something I want to again clarify. See, we want to write the main features. So a lot of things are important. You can't skip them. What is important here now? So the trends are important, of course, but another thing that's important is the first year data. So always remember कि फर्स्ट ईयर का डेटा देना ही देना है. अगर नहीं दोगे, you will lose bands. See, if you don't know where you start from or where you end at, you're not going to get good bands. The starting year data and the ending year data is really important. Middle में कोई year का data नहीं भी देंगे वो चलेगा. Does not matter. But the starting and the ending is really important. Like even if you like, just take your example. If you join an institute, let's imagine you start at like 6 months. That is really important that you started at 6. And where did you end up? For example, you ended at 7, 7.5. That is what shows the improvement. तो ये दोनों सालों का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर. मिडल में किसी भी ईयर का स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर रियली इंपॉर्टेंट. सो ये मेंशन करना है. अब मैं यही करूंगा. आई गिव द डेटा फॉर द फर्स्ट ईयर तीनों का, because I'm following that approach जहाँ पे मैं तीनों को इकट्ठे लेके चलता हूँ. So I give the data. So in January of 2001, another thing I want to mention, I did not do it here. You should use the full forms of months. And secondly, months names are in capitals, same Yes. as weekdays. So Monday, Tuesday, Wednesday, they are also in capitals, and months are always in capitals. So remember that. So January भी capital में आता और कोई भी महीना होता वो capital में आता. See, March I've written in capital. So they have to be written in capital, and I would say remember the full names. Like use the full names
and mention them in capital. So in January 2001, first by telephone, 800, 600, and 400. That's what I'll end up writing. The number of inquiries made by telephone was 600, while the number of inquiries, or I'll use change the sentence formation, while 400 and 200 inquiries were made by email, letter, and in person, respective. So I've done nothing special here, just given the data for everything. So I've given the data for telephone inquiries, I've given the data for email and letter inquiries, and I've given the data for in-person inquiries. So that's what I've ended up doing here. So in-person ka 400 or 600, okay, I misplaced it, 600, and the first one was 800, then 600 and 400, okay. Really sorry about that. So that's it. So ये हो गया. इतना कर लो पहले. This part is easy. First you write the introduction, then you write the overview with 2 features, then you write the first year. Maximum and minimum. Yeah, maximum, not the minimum. I don't write the minimum because minimum Okay. length increase होता है. Second feature I write is the trends. कि trends क्या है? कि कौन increase हुआ है, कौन decrease हुआ है. Second feature Okay, sir. that. Okay, so ये दो features overall में आ गए. Body paragraph start करा, तीन सबका data दे देना. First year का दे दिया, जनवरी का data दे दिया for all three. See, I've given the data. Telephone की 800 थी, 600 and 400 were made by this method and this method. All the three methods की अब दे दी. अब मैं ब्रेक करता हूँ, मतलब मैं पहला वाला बॉडी पैराग्राफ टिल अ सर्टेन मंथ लिखता हूँ. अब I'll tell you how do I do that because yesterday I didn't have time to show it to you clearly. So पहले मैं क्या करता हूँ, I underline. Yeah. Okay, fine. Okay, so first I do what? First I mark. See, pick one line. जहां पे भी उस लाइन का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वो ईयर मार्क करना है. I hope it's clear, but I'll clarify it by showing it to you. So let's pick this line, even letter. So मेरे को लगता है ये मार्च तक स्टेबल था. मार्च के बाद इसका ट्रेंड चेंज हो गया और ये डिक्रीज होने लग गया. So till March it is stable for me. After March it is decreasing. So that's the year I would end up marking. I would end up marking the year March for this line. I hope it is clear. Why March? Why not some other year? अगर तुमने कोई और year भी लेना है, देखो डायरेक्टली इसको डिक्रीजिंग भी मान सकते हो. That would also end up working for you. That is fine. I considered कि मार्च तक nearly stable था, मार्च के बाद डिक्रीज हुआ है. That is also fine in my opinion. ये लेना ऐसे ले लो, वैसे लेना वैसे ले लो. Okay, let's do it for in person. Here, I would mark 2 years probably or 2 months. One, I'll mark March क्योंकि मार्च तक increase हुआ है. मार्च से लेके अप्रैल तक स्टेबल था एंड अप्रैल के बाद दोबारा ट्रेंड चेंज हुआ कि दोबारा इंक्रीज होने लग गया. सो हेयर आई एंड अप मार्किंग 2 months. वन इज मार्च एंड वन इज अप्रैल. व्हाई एम आई मार्किंग मार्च? बिकॉज मार्च के बाद भी ट्रेंड चेंज हो रहा है. मार्च में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है. बिफोर मार्च इट इज इंक्रीजिंग, आफ्टर मार्च इट इज स्टेबल. अप्रैल में भी ट्रेंड चेंज हुआ. बिफोर अप्रैल इट इज स्टेबल, आफ्टर अप्रैल इट इज इंक्रीजिंग. एंड यू डू द सेम थिंग बाय टेलीफोन. टेलीफोन में मेरा एक ही मंथ आ रहा है. कौन सा मंथ आ रहा है? अप्रैल. अप्रैल तक आई एम गोइंग टू कंसिडर इट टू बी स्टेबल एंड आफ्टर अप्रैल आई एम गोइंग टू कंसिडर इट इंक्रीज. सो अप्रैल इज द मंथ आई वुड हैव कंसिडर्ड. यहाँ पे अप्रैल में ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब मैंने देखना है कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. अगर तुम देखो मार्च में 2 लाइन्स के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं. अगर तुम देखो अप्रैल 2 लाइन्स के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं. मतलब तुम कोई भी ब्रेक मंथ ले सकते हो जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेंड्स चेंज होते हैं, हम उस पॉइंट को लेते हैं अपना ब्रेक ईयर. सो हियर यू कुड हैव टेकन द ब्रेक ईयर एज मार्च और ब्रेक पीरियड एज मार्च और अप्रैल. योर विश, जो भी लेना है ले सकते हो. सो आई होप इट इज क्लियर कि ब्रेक ईयर कैसे डिसाइड करते हैं. इट्स रियली क्विक. मैंने अभी स्लो में करा, एक बार यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट बिकम्स रियली क्विक. इज इट क्लियर? ब्रेक कैसे डिसाइड करते हैं? जहां पे ट्रेंड्स चेंज होते हैं बस मार्क कर लो. जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं वो साल को लिखेंगे ब्रेक या कंसिडर करेंगे. इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes. Sameem, you had this doubt yesterday. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Not clear. Okay, done. ठीक है, मैंने कल भी वैसे करा दिया था. I just gave a little bit more clarity today. Okay. So, इसके बाद बस अब ये वाला अब तुमने मार्च तक लिखना है, अप्रैल तक लिखना है. चलो, आई कंसिडर के ना अप्रैल तक ले लेते हैं. चलो, सो ये वाली लाइन स्टेबल है, ये वाली लाइन भी स्टेबल है, ये लाइन अप्रैल मार्च मार्च ले लेते हैं. चलो, लेट्स कंसिडर मार्च हमारा में. तीनों के ट्रेंड्स बताओ मार्च तक क्या है. सो दिस आई वुड कंसिडर टू बी स्टेबल. This line, the telephone line, it's stable in my opinion. The email line also I'm considering it to be stable. अगर देखोगे तो मैं तो इसको stable मान रहा था, तुमने decrease मानना है वो भी चलेगा, मैंने stable माना है. And ये वाला line है, ये increase हुआ, so I'm going to consider it to be an increase. So telephone वाली line and email वाली line I'm considering stable. In person वाली line increase हुई है. That's what I'm going to end up writing, and I'm going to write it in a comparative form. मैं बोलूंगा कि पहली दोनों लाइनें increase हुई थी, stable रही थी, और third line increase हुई थी. I'm going to do that comparison here. So, um, over the next Sir. 2 months, yeah, any doubts? सर ईमेल और लेटर के बाद कॉमा क्यों है? एंड की पहले यहाँ पे कॉमा क्यों है? क्योंकि ना आई वॉन्ट के यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर पॉज ले, मतलब वो कट्ठे ना लगे. ईमेल एंड इन पर्सन कट्ठे नहीं है. दे आर टू डिफरेंट मेथड्स. Like I'll give you an example then. I'll give you an example. What do you have in breakfast? Let me give some examples. Hmm. Okay, I'm going to take an English breakfast. Okay, chalo. Because I don't know ना Indian breakfast, I don't know how you have, so I'm taking an English breakfast. चलो, अब मैं ये तीन चीजें खाता हूँ, तो मैं अब कैसे लिखूंगा? I eat eggs, pancakes, and bread and butter. और ये वाले and से पहले मैं comma ले रहा हूँ. Now somebody tell me why am I taking a comma before this and? और इस and से पहले नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये इकट्ठे है. Bread and butter is one dish. I'm going to consider it one dish. तो अब ये वाला एंड ऐसे ना हो ना कि एग्जामिनर यहाँ पे पॉज लेके बैठ जाए. मतलब एग्जामिनर थिंक्स आई एग्स पैनकेक्स एंड ब्रेड एंड बटर. उसको बताना है ना मेरे को कि कौन सा एंड इकट्ठे है, मतलब ये दोनों चीजें इकट्ठे हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू डिफरेंशिएट कि ईमेल एंड इन पर्सन इकट्ठे नहीं है, वो अलग अलग दो मेथड्स हैं. इसलिए मैंने वहां पे कॉमा डाला ताकि वहां पे पॉज ले एंड ही कम्स टू नो इट्स अ डिफरेंट मेथड. इज इट क्लियर? जैसे this is going to more clarity to the हाँ, examiner that this is इकट्ठे है और वो दोनों अलग है आलादा है, ना. ईमेल एंड अलग लेटर है. अलग है, इन पर्सन अलग है कैटेगरी. तो वो यहाँ पे पॉज लेगा. व्हेन आई पुट अ कॉमा हियर, he'll automatically take a pause here. So the comma would comma क्या होता है? देखो बोलने में तो comma बोलते Pause, हैं, comma का pause. मतलब है pause है. So the Yes. pause will add more clarity. So inquiry 600 and 400 inquiries were made by email and letter and in person respectively. And तो वो pause clarity देता है, इसलिए लिखा है. Is it clear? thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So, over the next 2 months, inquiries made by telephone and email letter. अगला ना अब एक काम करते हैं, अगला वाला जो लिखेंगे यू विल मेक इट राइट फॉर मी ताकि मेरे को पता चल जाए. सो अगेन दोनों का सिंपल लिख दिया, रिमेन स्टेबल. एंड कल भी मैंने ये वर्ड सिखाया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली इसलिए लिखा है क्योंकि लगभग स्टेबल है, एग्जैक्टली स्टेबल नहीं है. तो रिलेटिवली का मतलब होता है लगभग. ओके, जस्ट कंसिडर इट कि अप्रॉक्सीमेटली स्टेबल है, नॉट परफेक्टली स्टेबल बट लगभग स्टेबल है. Okay, by contrast, I hope you know why I'm using it here. We all did it yesterday. It's a comparison. So by contrast, inquiries made in person rose considerably to 400 से कितना हो गया? Around 800 I can consider in March to around 800 over this period, over the same period. सर आपने टेलीफोन के पहले बाय लगाया. यहाँ पे भी लगा अच्छा, दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
इन पर्सन के पहले क्यों नहीं लगा? इन पर्सन में इन बस। पर्सन ही है, मेथड का नाम इन पर्सन है, वो ऑप्शन में भी टेलीफोन के पहले बाय है। मैं नहीं लगा रहा, क्वेश्चन ने लगाया हुआ है। ठीक है, इन पर्सन के पहले ना बाय पर्सन नहीं कहते, इन पर्सन कहते हैं, वो बोलने का इंग्लिश का रूल है। हम बाय टेलीफोन करते हैं, बाय पर्सन नहीं कहते, इन पर्सन कहते हैं। मतलब मैंने जाके इंक्वायरी करी, तो उसको ये नहीं बोलते ना बाय पर्सन, वो अजीब लगता है, क्योंकि पर्सन कोई चीज थोड़ी है। तो मैंने वो पर्सन से इंक्वायरी करी, पर मतलब आई एम यूजिंग अ टेलीफोन टू डू एन इंक्वायरी, सो बाय टेलीफोन लुक्स ओके। बाय पर्सन लुक्स वेरी वियर्ड, पर्सन कोई चीज थोड़ी है कि उसके थ्रू उसको यूज करा मैंने इंक्वायरी करने के लिए। इन पर्सन का मतलब है मैं जाके इंक्वायरी कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? It's English. I'm not using it. It's like this here also in the question. Okay. What about don't focus. Okay, we'll address that if it's a doubt. But otherwise मेरे को बताओ, ये पैराग्राफ क्लियर है? ये यस सर। okay. What about others? Is it clear? देखो, just do the steps. First step क्या? Yes, sir. फर्स्ट स्टेप वाज टू राइट द फर्स्ट ईयर डेटा। देखो, हमने कोई स्टाइल Hmm. कुछ नहीं करना, उल्टा सीधा नहीं चलना, हमने लॉजिकल चलना। अगर हम लिखेंगे ना उल्टा सीधा, वो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर। Hmm. इन अ प्रॉपर मैनर, फर्स्ट ईयर में ये था, अगले 2 महीनों में ये हुआ। वी हैव टू टेक हिम लाइक दिस। देखो, मेरे को ना, यू नो, देर आर टीटीटी सेशंस। हैव यू हर्ड अबाउट टीटीटी सेशंस? यस सर। टीटीटी सेशंस आर ट्रेन द ट्रेनर। मतलब जहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग हुई थी, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई वेंट टू दी सेशंस कंडक्टेड बाय आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी, उसमें ये सिखाया था कि अगर आपका ग्राफ जो लिखा हुआ है वो पढ़ के एग्जामिनर नियरली द सेम ग्राफ से, एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, पर लगभग सेम ग्राफ वो बना पाए, तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। सो बात यह है कि मेरा ग्राफ पढ़ के उसको ग्राफ बनाना है। अब तुम खुद ट्राई करना, व्हाट यू राइट, अगर वो किसी से पढ़वाओगे, क्या वो एग्जैक्टली नहीं, पर नियरली द सेम ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे? Okay. Okay, sir, understood. ठीक है। वेरी गुड हाँ, मैथ ठीक सर। है। तो ये मेथड होता है So आपने। we can, sir, we can illustrate everything which is seen on the graph. एवरीथिंग पर नियरली नियरली द सेम, मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हुआ, अब जब मैं वो बनाएगा, वो नहीं बनाएगा ना नीचे, वो ऐसे बनाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ नियरली द सेम ग्राफ बनाना है उसने। Nearly. ठीक है, तो मतलब लगभग सेम बने, माइनर डिफरेंसेस है चलेगा, बट ऐसे नहीं ना। अगर मैं फर्स्ट ईयर का डेटा ही नहीं दूंगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, मैं लास्ट ईयर का नहीं दूंगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पे खत्म करूंगा। अगर मैं ट्रेंड्स नहीं लिखूंगा, उसको पता ही नहीं ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, वो कंफ्यूज है। सो हमने ये देखना है कि उसको उससे ड्रॉ हो जाए ग्राफ लगभग सेम। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करोगे? मार्च से। अब मार्च मार्च टू के बाद देखते जनवरी। हैं, इन दोनों लाइंस का मैं क्या लिखूंगा। ये दोनों लाइंस पहले अप्रैल तक क्या रही? स्टेबल। और अप्रैल के बाद जो दोनों लाइंस हैं, ये क्या हुई? इंक्रीज। राइट। इंक्रीज। तो मैं लिखूंगा कि दे रिमेन स्टेबल टिल अप्रैल, आफ्टर अप्रैल बोथ इंक्रीज एंड रीच दिस मच एंड दिस मच। और ऑन द अदर हैंड दिस लाइन डिक्रीज्ड, और ये डिक्रीज हो गई और इतनी पहुंच गई। दैट्स इट। Okay. ठीक है। एनीवन, एनी डाउट्स? So can we get some more practice? Could we get some graphs? I'll share more graphs to practice. देखो, मेरा अप्रोच ही है कि हम सारे ग्राफ्स कर पाए। चलो, कल हमने ये वाला थोड़ा आइडिया करा था, अब ये वाला देखते हैं। चलो, I'll show you this one. आई हैव अ डाउट। Yes, जो इंटरसेप्शन पॉइंट है वो नेसेसरी नहीं है मेंशन करना। वो करा है मैंने ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, जनवरी से लेके मार्च, बट यू कुड हैव मेंशन इट डायरेक्टली ऑल्सो, like till March, or like after January, and you could have written rose considerably to around 800 in March here. So you could have done it, but वो क्लियर, वो पता है क्या, मैंने इनडायरेक्टली दिया है किस वे में, 2 मंथ्स कह के, क्योंकि जनवरी से लेके अगले 2 महीने में तो वो मार्च तक पहुंच गए। यू कुड हैव डन इट इन अनदर वे by just mentioning March. For example, I could have mentioned from January to March here. So is there more strategies like we are not supposed to write the numbers on the first para and then the second para we can, is there something like that also?
No, you don't write the data in the overview, but यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, Okay. डेटा नहीं देना, बस डेटा, मंथ्स के नाम लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, years भी लिख सकते हैं, पर ये 800 है, ये नहीं दे सकते ओवरव्यू में। अर्चना, इज योर डाउट क्लियर? यही था। Yeah, it's clear. So can you just explain what overview exactly means? जो हमारा main data होता है। ओवरव्यू होता है ना ग्राफ का किसी को ऊपर ऊपर से बताना, लाइक मेन फीचर्स विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल, इट्स एन ओवरव्यू। Okay. जैसे कि यू कम टू मी, लाइक यू आस्क मी कि सर आपके कैसे हैं, मतलब कुछ भी पूछो, इंडिया का क्या हाल है, तो मैं ये बोलूंगा इंडिया की इकोनॉमी पिछले 2 सालों में ग्रो करी है। लाइक आई एम नॉट गिविंग यू द डेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक Yeah. रफ फिगर्स, लाइक रफ आइडिया कि क्या ये हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करी है, पर प्राइसेस भी, इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा ग्रो करी है, महंगाई भी बहुत ज्यादा ग्रो, Okay, sir. like that, like just the overall main features overview, nothing in detail, no data points, no nothing. Details we use it in the third para as if as Third and you fourth have paragraph, already. yeah. ये first Sir, year paragraph, no problem, no. In the overall year no problem. no problem. Year is not a problem. Year is not a data. Year is not a data. Data I mean by ये मत समझना numbers नहीं use करने. Data I mean this Yes, sir. 400, 600, 800, something like that Yes, you sir. can say. Okay. And this is body paragraph 1, and then we have the body paragraph 2, which comes after March. So like after March, you'll end up writing the same thing. जैसे कि after March में लिखूंगा ये तो decrease हो गया, इसको लिखूंगा कि ये 1 महीने तक stable रहे, ये दोनों. This one, Hmm. by the first two methods. यहाँ पे inquiries by these two methods remain stable or remained unchanged for the next month, but after that they increased. That is what I'll end up writing in the this case. So ऐसे करके लिखना है. And you end up writing. It's the same method. I'm not doing it because I think I'll be just repeating myself and I want to continue with the next one. So I'll leave it here. Okay, sir. And I'll, Okay, sir. ठीक है, चलो अब ये I would want you to make it. See, जब मैंने I left teaching a few days back because of some घर के issues. मैंने काफी दिन बीच में break ली थी. So before that, my class was really interactive. So I don't mind you asking questions. कभी भी मेरे को पूछ सकते हो and I'll address them. तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि you do it, मेरे साथ करो. चलो. So what I taught you, remember that and do that. तो करते हैं. पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, जो भी दिया ना क्वेश्चन में वही लिख देना है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. थोड़ा बहुत चेंजेस अगर तुमने डायग्राम से करने कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो और मैं बताता हूँ मैं क्या लिखता, तुम फिर सोचना तुम क्या करते. पहले तो मैं यहाँ पे लाइन ग्राफ्स लिखता, बिकॉज देर आर 2 लाइन ग्राफ्स. मैं यहाँ पे लाइन वर्ड डाल देता, दैट्स इट. बिलो मैं नहीं लिखता हूँ, ये तुम्हें भी पता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी आंसर शीट में कोई डायग्राम नहीं है नीचे. तो द बिलो वर्ड शुड नॉट बी रिटन. Instead of writing the show word, I write illustrates. You can write other words like compare. मैं normally illustrates या compare ही लिखता हूँ. There are other words like you might have learned like elucidates. पता है क्या है? There's one teacher, one examiner who said कि उन सबका कुछ और मतलब होता है. So avoid the other words. तो तब से मैं वो सारे words avoid करता हूँ. I only end up using illustrates or compare. बट ना इसमें कुछ एग्जामिनर्स वो अलाउ करते हैं, कुछ एग्जामिनर्स नहीं करते. आई डोंट टेक अ रिस्क. आई थिंक यहाँ पे मैं कोई ज्यादा नंबर लेने नहीं वाला हूँ कोई वर्ड बदल के. सो आई गो सिंपल, आई यूज द वर्ड इलस्ट्रेट्स. एंड फिर बस यही, इस डायग्राम से तो यही पता चल रहा है साइज ऑफ ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका. तो ये तो मेरा डिटो सेम ही आ जाएगा. यहाँ पे मैं ले सकता हूँ एंड द प्रोडक्शन ऑफ 3 ओजोन डैमेजिंग गैसेस. यहाँ पे गैसेस का नाम है. I'll probably end up using the name of the gases here. And bracket में मैं A, B, C, N लिख दूंगा. यहाँ पे प्रॉपर नाम लिखूंगा, ब्रैकेट में उनके A, B, C लिख दूंगा, ताकि बाद में मैं A, B, C यूज कर सकूं और मेरे को बाद में उनका फुल नाम ना लिखना पड़े. तो I'll end up doing that. And from 1980 to 2000 I'll do that. So मैं एक माइनर चेंज यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे 3 ओजोन डैमेजिंग गैसेस की जगह उनके नाम लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट में ABC लिखने वाला हूँ, because I don't want to end up writing CFC 11 again and again. That would increase the length of my graph and also take up valuable time. I'll just write gas A, gas B, gas C. उसके बाद एक बार लिख दूंगा कि gas A ये है, gas B ये है, gas C ये है. So I hope it's clear what I said. So the line graphs illustrate the, मैं इस ग्राफ का करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं दोबारा नहीं करूंगा. ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका.
जो पार्ट है ना मेरे को ये बताना था बस के एंड द प्रोडक्शन ऑफ 3 ओजोन डैमेजिंग गैसेस, ठीक है, कॉमा CFC11 A, कॉमा like that, CFC12 bracket में B and N2O. I can't write it in that case. From 1980 to 2000. That's it. That's what I would end up doing here. Nothing else. तो मेरा introduction हो चुका है. That part I just wanted to teach. चलो overall you all tell me. मैंने तुम्हें 2 features बताए थे. इसमें तो वो 2 features आ ही नहीं सकते क्योंकि एक ही लाइन है. तो क्या कौन सा feature नहीं आ सकता? Which feature we cannot write here? We have to write the trends and the maximum one. ऊपर वाले ग्राफ से सिर्फ एक फीचर आ सकता है. कौन सा फीचर आ सकता है? Trend. ट्रेंड. वी कैन नॉट राइट मैक्सिमम. व्हाई कांट वी राइट मैक्सिमम? एक ही तो लाइन है. मतलब मैक्सिमम होने के लिए 4-5 में कंपैरिजन होगा ना, तभी वो कोई टॉपर Yes. बनेगा. यहाँ पे तो एक ही बच्चा है, एक ही लाइन है. Yes, ओजोन sir. होल ओवर एंटार्क्टिका. अगर होता है ओजोन होल ऑल ओवर इंडिया, ओजोन होल ओवर अमेरिका, तो मैं कंपेयर कर देता कि कौन सा सबसे बड़ा है. पर यहाँ पे तो एक ही ओजोन होल है, तो किसको कंपेयर करूंगा? तो यहाँ पे तो ट्रेंड ही है. और ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड क्या है? Increased. Increased. Is it clear for everyone? This part, is it clear? Trend. इंक्रीज है. सिंपल इंक्रीज है. डिटेल में जाना नहीं है. बीच में डिक्रीज होगा, कुछ नहीं होता. सी वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? यू स्टार्टेड अराउंड 200. वेयर डिड यू एंड अप? यू एंडेड अप एट 3500. यू विल राइट एन इंक्रीज. अगर तुम्हें ये बात ना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ. देखो पेट्रोल प्राइसेस लो पिछले 15 सालों में. अब बीच में कभी गिरी भी होंगी ना, पर तुम क्या ही बोलोगे, पिछले 15 सालों में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है. यू विल एंड अप सेइंग दिस ओनली. तुम वो बीच में थोड़ा थोड़ा फॉल आएगा उसको नहीं मानोगे. डू यू एग्री? तो ऐसे हम Sir. बीच में माइनर माइनर चीजें नहीं कंसिडर करते. हम ओवरव्यू में ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल तो इंक्रीज हो रहा है ना इतना ज्यादा. हाँ, अगर एंडिंग भी 500 के आसपास होती फिर मैं सोचता कि फ्लक्चुएट हुई है कि क्या हुआ है, तब मैं सोचता. पर यहाँ पे तो 500 से स्टार्ट होके इट इज गोइंग अप टू 4000. इट इज डेफिनेटली एन इंक्रीज. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ टेल मी द ट्रेंड्स फॉर. अब नीचे आते हैं. नीचे दोनों फीचर्स चलेंगे. तो चलो इसका तो इंक्रीज लिख दिया. नीचे के तीनों के फीचर्स बताओ. ए का क्या फीचर है? Decrease. डिक्रीज. व्हाट्स द फीचर फॉर बी? ट्रेंड फॉर बी. Yes. एंड ट्रेंड फॉर सी? इंक्रीज. तो अब ये लिख देना चारों के लिए. तो तुम बोलना साइज ऑफ ओजोन होल क्या हुआ? इंक्रीज. एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैस बी एंड सी ऑल्सो increased, Increase. while the production of gas A Decreased decreased. dramatically. Plus dramatically over the given period. That's it. तो जो पहला पैराग्राफ है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे. उसका भी ट्रेंड ही है ना, ट्रेंड कंबाइन कर देंगे. ट्रेंड बॉडी पैराग्राफ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ओवरऑल में बात कर रहा हूँ. जब ट्रेंड लिखने हैं ना तो हम इसका ट्रेंड और बाकी तीनों के ट्रेंड कंबाइन करके लिख देंगे. इज इट फाइन? यस सर. ओके. अभी एक और फीचर, पर नीचे वाले में एक और फीचर आता है. कौन सा फीचर आता है? व्हाट्स द सेकंड फीचर वी राइट इन द ओवरव्यू? In addition, मैक्सिमम. maximum होना. अब मैक्सिमम यहाँ पे चेंज हो रहा है. चलो बताओ स्टार्टिंग में कौन मैक्सिमम है? 1980 कौन सी गैस की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? A. Gas A. ए. ठीक है. और कब तक ये सबसे ज्यादा रहती है? 1990 तक. 1990 तक. वेरी गुड. और 1990 के बाद सबसे ज्यादा किसकी है? B. बी की. तो हम ये लिखेंगे. सेकेंड फीचर जो हम ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि 1990 तक मैक्सिमम प्रोडक्शन थी गैस ए की, बट आफ्टर 1990 द मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज ऑफ गैस बी. इज इट क्लियर? Yes, sir. In addition, from 1980 to 1990, gas A was the highest. The production of gas A was the maximum. Production of the gas A was the highest. After 1990 to 2000,
B, production of gas B was the highest. Yeah, minor grammatical, you didn't put a while, otherwise it was perfect. बीच में While, sorry, sir, while. Okay, बाकी सारा ठीक था. Always while, but by contrast, we have to. You have to do it. Okay, so यहाँ पे यही वाला, I hope it is clear overview. तो पहले सबके वो लिखने हैं. I think trend सबको clear है. So हम लिखेंगे size of ozone hole and production of gas A, gas B and C increased, while production of gas A decreased over the given period. That's it. Simple. कुछ नहीं करा, कुछ complicated नहीं करा. ठीक है, ये पहला फीचर आ जाएगा. फिर इन एडिशन करके सेकंड फीचर विच इज द मैक्सिमम. रिमेंबर फर्स्ट वाले ग्राफ में कोई मैक्सिमम नहीं बन रहा है बिकॉज देयर इज ओनली वन लाइन. सेकंड वाले ग्राफ में बन रहा है प्रोडक्शन ऑफ गैस ए टिल 1990. अगर अभी भी किसी को डाउट है, देखो ये मत कंसिडर करना ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैक्सिमम का मीनिंग सीखना. हम मैक्सिमम लिख रहे हैं. मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा. अभी ए सबसे ज्यादा, देखो ए इज अराउंड, इस टाइम पे ए की वैल्यू कितनी है, 60 है. राइट, बी की कितनी है, बी की तो 25 है, 30 है. तो बी ए से कम है ना, जहाँ बी ऊपर जा रहा हूँ. ये मत करना बी ऊपर जा रहा है वो मैक्सिमम हो गया. मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, जो बाकी सबसे ज्यादा हो, चाहे वो गिर रहा हो. गिरना अलग बात है, गिरने की हिंदी है, गिरने की इंग्लिश है डिक्रीज. मैक्सिमम की इंग्लिश है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा. मैक्सिमम सबसे ज्यादा की इंग्लिश है मैक्सिमम. वो कंपैरिजन हो रहा है बीच में, सो इनको Highest. करना. या हाईएस्ट, डोंट कंफ्यूज देम विद ईच अदर, दे आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. इन एडिशन, प्रोडक्शन ऑफ गैस ए was the maximum or was the highest till to 1990. 1990. Why? After 1990 or from 1990 or you B. yeah, from 1990 to 2000. और भी तरीके हैं लिखने के, like while 1990 onwards. 1990 के बाद के लिए तुम क्या लिख सकते हो, 1990 onwards the production of gas B was the maximum. B was. That's it. कुछ भी लिख सकते हो. The years could be written in different ways, the time period. So that's my overview. अब बताओ, anyone any doubts in the overview? No, sir. Clear everyone? Yes. Okay. चलो अब मेरे को बताओ, करें यहाँ पे. इसको तो बड़ा सिंपल है लिखना. बताओ, मैंने जो तुम्हें सिखाया था, विल राइट वन बॉडी पैराग्राफ फॉर द फर्स्ट वन. हम कंबाइन नहीं करेंगे, हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे. विल राइट वन बॉडी पैराग्राफ. तो व्हाट डिड आई टेल यू, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? फर्स्ट लाइन. 1980. या दोबारा रिपीट अगेन सुमीन. 1980 से 1980 1990 तक नहीं, सेंटेंस वो सेकंड सेंटेंस पर. पहले सेंटेंस में मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 1990 1980 सॉरी 1980 का क्या दूंगा? 19 start Was starting, maximum till 1990 and then it got deprived नहीं नहीं to नहीं 1995. डाटा दूंगा. 200 का डाटा दूंगा. ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका was 2000 in 1980. ओके. सो 1980 में बस तुमने डेटा देना है, कुछ नहीं और Yes, करना. sir. सिर्फ डेटा देना है यहाँ पे कि कितना है, अराउंड 200. Around 200. Yeah, the size of ozone hole was around 200 square kilometer, 200,000 square kilometer in 1980. यहाँ पे 1000 भी लिखा हुआ है, तो 200,000 square kilometer in 1980. फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि 1990 तक वो क्या हुआ? Was maximum. 2000. No, no, no. Increased, Increase. Increase maximum. Increase हुआ. Increase हुआ. And फिर 1990 से लेके 1993 तक क्या हुआ? considerable गिर गया. और again it went by decrease, down. Down. Decrease हुआ. And then again it Again increase. It got again, increase. a dramatical increase and reached how much? until 2000, Around Reached 300 to- 3,500, 3,500
या सर ये कैसे लिखूंगा? 1000. यू लिख अपने आप अराउंड 3500 कुछ भी लिख लेना डेटा। अब डेटा तो तुम आसपास ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख लेना ना पेपर में कितना। 3500,000. 35. Around 500,000 स्क्वायर 35,000. किलोमीटर। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो दैट्स इट। सो ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज डन। नो नो नथिंग है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से बस यहाँ पे ये लिखना है इंक्रीज है फिर डिक्रीज है फिर इंक्रीज है। जब यहाँ पे बीच में ट्रेंड्स चेंज करोगे तो बीच में कंपैरिजन वर्ड्स यूज करना, जैसे कि हाउएवर या बट। बस एक इतना सा मैंने बात करना था, जब इंक्रीज के बाद डिक्रीज जा रहे हो तो एंड नहीं लिखना होता है, कंपैरिजन वर्ड्स लिखने होते हैं, लाइक बट, हाउएवर, you need to use them. So end up using those words when you're making that comparison so that the examiner pays attention कि first it increased but then it decreased. But लगाना, पहले इंक्रीज था पर बाद में डिक्रीज हुआ, पर बाद में डिक्रीज हुआ, पर लगाना, अगर नहीं लगाओगे वो इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आएगी। सर इसमें बाय कॉन्ट्रास्ट और व्हाइल दे पाऊंगा? मैं बताता हूँ, मैं बाय कंट्रास्ट एंड व्हाइल का और बट और हाउएवर का डिफरेंस भी कराता हूँ, ठीक है? पहले पहले पूरा करते फिर मैं उस पे आता हूँ। चलो पहले अब सेकंड बीपी पे आओ। चलो अब तुम क्या करोगे, सेकंड बॉडी पैराग्राफ आ रहे हैं तीनों गैसेस की, मैंने पहले क्या बोला था वही चीज रिपीट करो। पहले फर्स्ट ईयर का क्या देना है, डेटा। तो फर्स्ट ईयर का डेटा दो, कौन सी दो गैसेस का, ए एंड A, B. एंड बी। चलो दे दिया। तो ए की प्रोडक्शन थी अराउंड 70 मिलियन टन्स while द प्रोडक्शन ऑफ बी stood at around 30 25. और 25 30. मिलियन टन्स। यस, ठीक है, जितना मर्जी वो देख लेना, अंदाजा लगा लेना, आई एम जस्ट टेकिंग अ नियर बाय, नॉट टेकिंग प्रॉपर। उसके बाद Approximately. उसके बाद हमने यहाँ तक लिखना है, ये मैंने ब्रेक किया मारा है। अब ये मैंने ब्रेक किया इसलिए मारा है क्योंकि यहाँ पे सी की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो 1990 पे मैंने ब्रेक मार के 1990 तक बात करनी है। ओके, तो 1990 तक ए की प्रोडक्शन क्या हुई, ये 19 Increase हो गया. इंक्रीज हो गया, और ए का क्या, बी का क्या हुआ, Increase. Just increase. इंक्रीज हो गया। कंपैरिजन करके लिखना, वाइल लगा के लिखना, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद तुमने करना है यहाँ से ऑनवर्ड्स, यहाँ पे तुमने लिखना कि 1990 में प्रोडक्शन ऑफ गैस सी स्टार्टेड एंड फिर वो Right. इंक्रीज हुई एंड वो कितनी पहुंच गई, इतनी। एंड बी की भी प्रोडक्शन इंक्रीज होती 25. गई 35. या एंड बाय कंट्रास्ट ए की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई और कंटिन्यू टू डिक्रीज एंड इतनी पहुंच गई। इज इट क्लियर? एंड इज Yes. इट clear? Okay. So now I'll clarify the differences between two, three words and I'll just complete this. Okay, chalo. Okay. So first of all, you asked me what's the difference between while and but. चलो मैं ना दो sentences लिखता हूँ, तुम देखना तुम मेरे को डिफरेंस बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। I'll tell you. समझ गया सर। Okay. Tell me what's the difference. This is the difference between the elements. That means first one is the different word while used for two different things. That means I and my sister. But when you use but, that is only for me. That means one content. That is only I. I Very like cricket, but not badminton. okay. So when we compare two things, then we will use but sorry, while by contrast. But when we will describe one thing, that is, then we will use but or what you said. Very good. Now let me just explain it again. You explained it perfectly, but मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ just for the sake. So different subject से comparison के लिए हम while लगाते हैं। तो अब ये बात तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। देखो A डिक्रीज हुआ, B इंक्रीज हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है। पहला सब्जेक्ट A है, सेकंड सब्जेक्ट इज B, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा वहां पे आई वांट यू टू यूज while। By मतलब contrast. मैं और मेरे साथ, मेरा मेरे साथ ही नहीं कंपैरिजन हो रहा, मेरा मेरी बहन के साथ हो रहा है।
I'm comparing two different subjects. Okay. But if you compare the same subject, देखो यहाँ पे पहले ओजोन होली इंक्रीज हुआ, बाद में ओजोन होली डिक्रीज हुआ. तो जब Yes, sir. पहले ओजोन होली इंक्रीज हुआ, बाद में ओजोन होली डिक्रीज हो रहा है, तो सेम सब्जेक्ट है. तो Same सेम subject. सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि पहले वो इंक्रीज हुआ था पर बाद में वो डिक्रीज हुआ था. जब सेम सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन आता है तो हम while नहीं but यूज करते हैं. That's the logic. Is it clear the difference between while and but? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now clear. Another word you said, but के साथ, वो क्या था? However. However. Okay. 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 Now And it's के clear. साथ by contrast. While or by contrast, and how, but or however. Now it's clear, sir. Okay, so Thank you, they are between the same subject Same and subject, between different subjects. different, sir. Both are used for comparison. Comparison तो होगा ही होगा. यहाँ पे कंपैरिजन होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में. देखो मेरे को क्रिकेट पसंद है, मेरी बहन को बैडमिंटन, हम दोनों डिफरेंट. Yes. तो Yes, हाँ, sir. कंपैरिजन होना चाहिए. अगर मेरी बहन को भी क्रिकेट पसंद होता तो यहाँ पे वाइल ही नहीं आता. And आता. नहीं आता. ठीक है, यहाँ पे मुझे क्रिकेट पसंद है पर बैडमिंटन नहीं पसंद है. अगेन कंपैरिजन है, बट मेरा मेरे साथ ही है, इसलिए यहाँ पे बट आया. सेम सब्जेक्ट में बट आता है. ओके, अब Yes, sir. बताओ. Thank you, sir. ओके. No, sir. No, sir. Okay. So that's it. Okay. Should we write this? Or is it clear? Would you be able to write it? Sir, I think we will be write this, but if you give us some I'll give you another one to homework, then that. it will be देखो better इसके for बाद us. तो ना स्पेशल ग्राफ्स हैं, वो मेरे को करवाने, वो मैं करवा दूंगा. वो करवाने पड़ेंगे एक एक डिफरेंट करके, बिकॉज दे आर स्लाइटली ट्रिकी. सो बट ये जनरल मेथड है. अगर ये जनरल मेथड नहीं आएगा तो फिर मैं आगे नहीं चल पाऊंगा. सो अभी तो जनरल मेथड ही करना है प्रैक्टिस. ये वाले ग्राफ में यू कैन एंड अप प्रैक्टिसिंग. ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट यू कैन प्रैक्टिस इट. तो बात ये है, अब ये वाला याद कर लो मेथड, अपना मेथड याद करो, एक बार रिवाइज कर लो, बस राइट द करेक्ट मेथड. चलो ये वाला मैं करवा ही देता हूँ. लेट्स जस्ट डू इट हियर. देखो इसके अंदर पता है क्या हो रहा है. इसके अंदर दो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस दो है. ये पॉपुलेशन साइज है. पॉपुलेशन साइज वाली अगर तुम लाइन देखो तो ये वाली लाइन है, डैश वाली, मतलब ये वाली लाइन. तो जब पॉपुलेशन साइज को लेना है ना तो डेटा यहाँ से देखना है. मतलब 1700 में पॉपुलेशन साइज को तुमने लेना है 2.5 मिलियन, यहाँ से लेना है. पर जब तुमने बर्थ रेट को लेना है ना, वो यहाँ से लेना है. मतलब ये नहीं 1700 से ही स्टार्ट करना है, 2000 से नहीं स्टार्ट करना. पर जब तुम डेटा देखोगे तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इस टाइम पे वैल्यू कितनी थी. तो यहाँ पे इस टाइम पे वैल्यू थी 27 पर 1000 पीपल. तो तुम्हारा बर्थ रेट जो फर्स्ट ईयर में होगा वो 27 पर 1000 पीपल होगा. यहाँ पे आओगे तो डेटा यहाँ से लेना है, कितना हो जाएगा 35. तो यहाँ पे Sir, 35,000. sir, again, please. देखो इफ यू लुक हियर, देखो जब तुमने इसको लेना है, पॉपुलेशन साइज को लेना है, तो तुमने ये वाली वाई एक्सिस को देखना है. यहाँ पे Yes. पॉपुलेशन साइज है तो तुमने यहाँ से डेटा उठाना है. तो 1700 से ही स्टार्ट करेंगे, पर डेटा ऐसे लेंगे 2.5 मिलियन, यहाँ से लेना है ऑन दिस एक्सिस. Yes. Yes, sir. जब तुमने ये वाली दोनों लाइनें लेनी है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उनका डेटा यहाँ पे नहीं लिखा, उनका डेटा इस तरफ लिखा है. तो हमने इधर देखना है. स्टार्ट हमने 1700 में ही करना है, तो स्टार्ट यहाँ पे करा, पर डेटा इधर मत जाके देखो 1700. Sir, यस, so this is two graph for This- birth and death rate and population size. या यू कैन कंसिडर इट टू डिफरेंट ग्राफ्स. इसको वाई एक्सिस में देखना है, तो वाई एक्स इधर देखा तो कितना वैल्यू है इधर. 1700 में बर्थ रेट का क्या वैल्यू है, डेथ रेट का क्या वैल्यू है, बताओ. यहाँ पे आके देख क्या वैल्यू है इस Death पॉइंट. rate 20, birth and death rate 20. 27. Population size. नहीं 27, पर यहाँ से देख के नहीं आ रहा. रेनी वी आर लुकिंग हियर. Okay. Sir, for birth and death rate, या where is the I am, start point? I- Okay, Rini, stop, please, stop. Where is the start point and where is the end point? Just ये बता दीजिए, हमको clear हो जाएगा. okay, I'll clarify for Renny also, for you also. See,
स्टार्टिंग कहाँ होगा? ईयर से ही स्टार्ट होगा। पहले कौन सा साल आएगा? 1700। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1700 ही रहेगा। इज इट क्लियर? स्टार्टिंग तो तुम 1700 पे ही करोगे ना, 2000 से स्टार्ट नहीं कर सकते। डू यू ऑल Okay. एग्री? Okay, sir. We ठीक agree. है, एग्री। पर डेटा इधर नहीं देखना है, डेटा इधर से देखना है। Hmm. मतलब 1700 में देखो, इधर इधर कितना वैल्यू है बताओ, ये वाला पॉइंट है ना। Hmm. Hmm. 28 approximately. 28 और 28 यूनिट्स क्या लिखे हुए हैं? 28 पर per 1,000 people. ओके, क्लियर फॉर Yes, यू? sir. Okay, Rennie, now you come. Okay. See, Rennie, this is birth rate and death rate. What you said is completely right. ये एक different graph है. What you were saying was completely right. ये एक different graph है. और population size का एक different graph है. इसको different graph मान के चलते हैं. अब पता है क्या करना है? मैं इसको clarify करता हूँ एक second. देखो, ये clarity ना बहुत अच्छी आएगी. With the way you said, it gave me a very good idea. देखो, जब मैंने birth rate और death rate देखना है ना, तुम ये भूल ही जाओ. ये लिखा ही नहीं है. Yes, sir. इसको भूल जाओ. यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है. Just imagine करना है, वो एक अलग ग्राफ है. वो एक अनदर ग्राफ है. व्हाट यू सेड. तो यहाँ पे अब देखो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आके वैल्यू देखेंगे. इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? 27. तो हमने इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी लेनी है? 27. ये वाले यूनिट्स लेने हैं पर 1000 पीपल. इज इट क्लियर? Yes, sir. से यहाँ पे बर्थ रेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30. इस पॉइंट Approximately. अप्रोक्सीमेटली 30. तो यहाँ से स्टार्ट करना है मेरा. सॉरी, ये बीच में आ रहा है इमेज के, तो हम ऐसे जाके चलेंगे. आई होप इट इज क्लियर. डज इट मेक सेंस? एंड जब पॉपुलेशन का देखना है तो इधर देखो, कुछ नहीं करना, इसको भूल जाओ. तो ये नहीं एग्जिस्ट करता. ठीक है. सो एनीवेज, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप देखो, ये छोटी सी बात है, ट्रिक तुम बाद में समझ जाओगे, कुछ नहीं होता, मैं समझा दूंगा. पर देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, बॉडी पैराग्राफ की बात करते हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर का डेटा देता हूँ. तो मैंने बर्थ रेट एंड डेथ रेट को इकट्ठे लिखना है. मैंने फर्स्ट ईयर का डेटा दिया. लेट मी टेक अनदर ग्राफ. लेट मी टेक दिस ग्राफ इन अनदर फॉर्म, जहाँ से मैंने लिया ओरिजिनल फॉर्म. पिछले वाला भी ऐसे ऐसे ही था. फर्स्ट या वन था वन 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 one thing and another guess A, guess B, guess 3, yes, second paragraph में. the last one was also like that. You're absolutely right. And I'll show you. Just give me 1 second. Let me open the book. Yeah. वो ना मेरा खराब हो गया because of yeah. चलो, this is the graph. Okay. तो मैं अब मेरा मेथड याद करो. व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई डू. अब तुम ये इसको भूल जाओ प्लीज, इस लाइन को यहाँ पे भी देखना नहीं है. और तुमने ये भी नहीं देखना, ये वाली लाइन को भी अभी भूल जाओ. ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में देखेंगे, इसको मैं बाद में कराऊंगा. अभी मैं ओवरव्यू की बात भी नहीं कर रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ तुमने बॉडी paragraph. ओवरव्यू लिख लिया, मैं बॉडी पैराग्राफ. चलो, मेरे को बताओ व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई डू इन द बॉडी पैराग्राफ. एनीवन? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई डू? आई गिव द डेटा फॉर द Birth and death rate was Data for the starting year, 1700. 27 and 30 per 1,000 people respectively. Okay, very good. Chirag, you also said fine. Samim, you also gave the figures. Fine. So you give the data for the first year. दे दिया. तो एक का Yes, sir. 30, एक का 27 है रिस्पेक्टिवली. अब दोनों को इकट्ठे लेके चलते हैं. चलो, 1700 से 1750 तक दोनों क्या रहे, क्या हुआ दोनों में? Increased. Maximum increase. नहीं, नॉट मैक्सिमम फ्लोरा. मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा. Yes, yes, sir. Yes, increase. Yes, sir. डन, हमने लिख दिया 1750 तक दोनों इंक्रीज हुए. ठीक है. अब पता है मैंने क्या करा? वैसे तो तुम पूरा लिख सकते हो, यहाँ तक स्टेबल है फिर डिक्रीज है. मैंने करा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक दोनों को डिक्रीज करवा दिया. अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, अप्रोक्सीमेटली द सेम ग्राफ देखना है. तो अगर तुम देखो Nearly. नियरली द सेम ग्राफ, तो देखो ये दोनों डिक्रीज ही हो रहे हैं ना यहाँ तक. Yes, sir. डू Yes, यू ऑल Yes, एग्री? sir. yes, sir.
देखो हम्म, ये ऐसे ऐसे नहीं मैं बना रहा, मैं एग्जामिनर को बोलूंगा तुम ऐसे बना लो, ये दोनों डिक्रीज हुए हैं। जहाँ ये फ्लक्चुएटिंग करते हुए डिक्रीज हुए हैं वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगेगा अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि फिर स्टेबल रहा, फिर डिक्रीज हुआ, फिर स्टेबल रहा, फिर डिक्रीज हुआ। आई वुड हम्म, नॉट बी एबल टू फिर कंप्लीट। हम ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे ना, टाइम नहीं, टाइम विल एंड अप यूजिंग अ लॉट मोर टाइम। सो आई विल कंसिडर बोथ ऑफ देम डिक्रीज टिल हियर एंड आई विल कम टू द वैल्यू हियर। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा कि आफ्टर टू 1950 बर्थ रेट इंक्रीज हुआ वाइल डेथ रेट स्टेबल, Remain same, remain same. और मैं वैल्यू दे दूंगा। सो दिस इज व्हाट आई वुड एंड अप डूइंग फॉर दिस ग्राफ। देखो ट्रेंड्स ही लिखने, मैंने यहाँ पे दो ब्रेक ईयर कर दिए। पहला ब्रेक ईयर मेरा 1750 है, मैंने दोनों का बताया कि 1750 तक दोनों इंक्रीज हुए। फिर 1750 से लेके 1950 तक मैंने बोला दोनों डिक्रीज हुए। आफ्टर 1950 आई सेड कि बर्थ रेट इंक्रीज हुआ पर डेथ रेट स्टेबल रहा। दैट इज व्हाट आई विल एंड अप राइटिंग। सो एनीवन हैज एनी डाउट्स हियर, लेट मी नो। देखो No, sir. मेथड पे फोकस करो, मेथड इज इंपॉर्टेंट, माइनर डिटेल्स पे फोकस मत करो। ठीक है, Yes, sir. डेटा कितना है मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, 35 की जगह 30 बोल दूंगा, वो भूल जाओ। बस ये देखो कि मेथड क्या है। स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर डेटा, पिक अप द ट्रेंड स्टिल अ ब्रेक ईयर। ये ब्रेक ईयर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ तक इसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा था। तो देखो यहाँ तक मेरा इंक्रीज, इसके Yes, बाद मेरा डिक्रीज है, फॉर मी इट्स अ डिक्रीज, सो माई ट्रेंड yes, इज sir. चेंजिंग, दैट इज व्हाई आई एम स्टॉपिंग हियर। अगर यहाँ तक इंक्रीज हो रहा होता तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता। उसके बाद मैंने लिखा कि दोनों डिक्रीज हुए, फाइन। उसके बाद मैंने लिखा ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हुआ। आई होप इट इज क्लियर। एंड ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ तक स्टेबल रहा, फिर बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ और इतना पहुंच गया। दैट्स इट, कुछ बीच में ब्रेक नहीं है, सीधा इंक्रीज होता जा रहा है, दैट्स इट। सो सर लाइक इसमें इसमें 5 और 6 कंपोनेंट हो तो मैंने लास्ट की बात लिखूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ लिख दूंगा कि इसमें से लास्ट तक डिक्रीज हुआ। हाँ, That's it. यू कैन है ना, यहाँ तक डिक्रीज हुआ, यस यू कुड हैव। अगर अगर इसमें 5 और 6 यस, कंपोनेंट है यस, अगर इतना ज्यादा वो हो जाएगा तो फिर यू तो हैव टू मेक सर्टेन assumptions, यस सर। राइट? ठीक है, ओके। नाउ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम विद द बॉडी पैराग्राफ्स? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है। फर्स्ट ईयर का पहले डेटा देना है, फिर ट्रेंड्स लिखने हैं ब्रेक ईयर तक, फिर नेक्स्ट ब्रेक ईयर तक, फिर फाइनल ईयर तक। दैट्स इट, गो स्टेप बाय स्टेप एंड यू आर एबल टू फिनिश दिस। सेम थिंग सर हियर। सर बर्थ रेट जस्ट और डेथ रेट को मिक्स एक साथ लिखे हैं। हाँ एक साथ लिख रहा हूँ ना, ट्रेंड सेम है, देख यूसुफ, यहाँ तक दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ तक दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, बस इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हुआ, स्टेबल रहा। स्टेबल। तो फिर मैं क्यों, मैं साथ साथ में लिखता हूँ, दोनों का काम जल्दी हो जाएगा, मेरा छोटा बन जाएगा ग्राफ, इट विल हेल्प मी सेव टाइम एंड सेव माई राइटिंग, सो आई वुड कंसिडर इट टू बी बेटर इन दिस वे। जस्ट जस्ट लास्ट लाइन में लिखना है बर्थ रेट स्टेबल रहा, सॉरी बर्थ रेट इंक्रीज हुआ, आई, डेथ रेट स्टेबल रहा। या विद द while in between because you're यस comparing. Good. Okay, anyone any doubts here? अच्छा, ओवरऑल भी चलो बताओ फिर। Rennie, first, okay, I'll involve all of you. So I'll start with Rennie. Rennie, I want the, are you here, Rennie? Yes, now yes, yes. really is Yeah, here. smart. Yeah, now she'll tell. You will also tell. Everyone will tell one by one. Okay, Rennie, Okay. मेरे को overall चाहिए। क्या लिखेंगे Okay. overall में? First, tell me the trends for all the three lines. Okay. Overall, birth date and birth rate and death rate. Yeah, what's the, One. Okay, okay, okay. Birth rate is more than death rate, always. no, that is fine, but okay, that the second feature. First, tell me the trends for all. What's the trend Uh, for population size? Population is increasing. Very good. Birth rate? Birth rate also, that is So it fluctuating. shows that birth shares has been decreased, has decreased from No, it is Birth increasing. rate increasing. Increasing. Then death rate decreasing. and that rate equally सर ये तो दोनों equally decrease हुआ है after No, wait here. 30. I'll explain, ठीक है? What Rennie said is fine, but I'll think better would be, देखो, पहले देखो,
जो बर्थ रेट स्टार्ट हुआ वो 30 पे स्टार्ट हुआ, वो एंड हुआ Sir, 30. I think this is fluctuated. Yeah, fluctuated would be better because देखो Better. starting point and ending point It is was nearly in the same. between 25, 20, between 25 to 20 came. So Not we can not write not big margin difference. Yeah, so I think Rennie, it would be good if you write कि both of them fluctuated. Clear? Yes, sir. Okay. And अगर वैसे देखे फ्लोरा तो पता है कैसे देखते हैं what she said, what the method she followed, which was also right. But वो method क्या था? She was looking at the first year and the last year. So what is the first value? First year value of birth rate. Tell me, Flora. First year में कितना है? Birth rate. So 30, it is about 30. And what's the value in 35 of last year? Answer दे दिया. Sorry. It is 35. तो It क्या is हुआ? उसमें क्या हुआ? सर इसमें इंक्रीज हुआ है. ठीक है. अब डेथ रेट का फर्स्ट ईयर का वैल्यू कितना है? Around approximately it is around 32, 33, No. Death rate. This line. 25, 20. Come on. It is around 27. 26. And what's the value in the final year? And 20. So it got decreased Yeah, in, that is in the the way she final was year. doing it. Is it clear? She was looking at the first year and final year. That's how I normally do it. But ये first year and final year की वैल्यू बहुत आपस में क्लोज है, इसलिए फ्लक्चुएटेड लिखते हैं. अगर ये थोड़ा और नीचे आ गया होता ना तो मैं क्या ही लिखता? डिक्रीज ही लिखता. Decrease नहीं लिख. मैं डिक्रीज, अगर ये 10 पे आता तो मैं डिक्रीज ही लिखता. इज इट? Obviously, yes, sir. Yes, sir. और ये Sir, 35 की sir, 45 होता sir, तो Got increased sir, about 35. हाँ तो मैं इंक्रीज लिखता. अगर अगर sir, ऐसा होता डिफरेंस ज्यादा होता. या समीम? sir, I want to write population rate increased, birth rate fluctuating, Yeah. but death rate decreased. Yeah, you Is can it write right? that also. That also works. That Okay. means three Three different trends. trends. Yeah, I'll show you how to write if you want. You can write three different. See, I've written, you can write three different trends. Here, what I've written is the population size rose with time while the death rate and birth rate fluctuated. Okay, but you could have written what he wants to say. I'll show you that also. Also, the population size, तीनों के different trends हो तो कैसे लिखना है? Rose with time while the death rate decreased and the And birth rate fluctuated fluctuate. over the given period. So एक बार while आता है बस. समीम, दो बार while नहीं आता. Remember that. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है. और इससे पहले कॉमा डाल देना because you want the examiner to pause. Again the same thing because यहाँ पे पूरा clause change हो रहा है. So I'll not put a while but I'll definitely put a comma so the examiner pauses and he focuses कि trend change हो रहा है. यहाँ पे trend नहीं change हो रहा है इसलिए comma नहीं है. यहाँ पे trend change हो रहा है. I want him to pause. So put a comma here. Very good. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Okay. Anyone, any doubts in the overview now? Rennie, you did No, sir. Rennie, it was very good. I think it was very clear. So and if you wrote what you said, that is also fine. Rennie, if you wrote this increased and this decreased, that would also work. Don't worry about that. Okay. Yeah, because even I was trying to do the same thing. The birth rate and the death rate has been dramatically increased, and the death rate is decreased. हाँ, I was trying. It was वो भी ठीक है. clearly seen. It was fluctuating. Yes. हाँ वो भी ठीक है. Fluctuated भी लिख सकते थे, increase decrease भी लिख सकते थे. ये लिख इसलिए सकते हैं. Okay. Sir, the main what you mean to say when we are illustrating the paragraph, it should be like the examiner should make it the same way what we are writing. So तो जो so ये दिख रहा है ना उसको जो हम लिखते हैं. उसको ये ग्राफ दिख नहीं रहा. उसने हमारा पढ़ना है. हमारा पढ़ के हाँ, उसने ऐसा ही उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो नियरली ऐसा ही बनना चाहिए. अगर चाहिए. वो Okay. नहीं बना पा रहा, Sir, अगर one more thing, like we can use this, there's some however, moreover, and all that connectors and all that. We can just use it in this, but in a proper way. मोरोवर तो देखो यहाँ पे देखो. मैं पहले तो मोरोवर एंड हाउवर आर कंप्लीटली डिफरेंट. मोरोवर का Yes, sir. मतलब होता है एक और बात. वो मैं हाँ, हाँ, ओवरव्यू हाँ. में यूज करता हूँ. ओवरव्यू में मोरोवर का मतलब है जैसे मैंने पहला फीचर लिखा, नाउ आई एम राइटिंग द सेकंड फीचर, तो दोनों फीचर्स के Okay. बीच में ऑल्सो की जगह पे Oh, मोरोवर लिख सकता हूँ. ठीक है. okay.
Okay. Okay. However is not an addition connector. It is a comparison connector. वो हम Comparison, yes. हम वो लगाते हैं जब चीजें बदल रही हैं, जैसे पहले इंक्रीज हुआ, बाद It, में वो डिक्रीज हुआ. the way it is like however it shows both the birth rate and the death rate has a differentiate. It shows a fluctuating between both of them, between both the birth rates. So बोथ तो here we can use. नहीं, बोथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अभी उनमें कोई फर्क नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है. ओके. अच्छा, टेल मी, यहाँ तक क्या हुआ है? 1750 तक क्या हुआ है? दोनों इंक्रीज. से increase हुआ है, 1750 के बाद क्या हुआ है? decrease हुआ है. यहाँ पे हाउएवर आएगा. दोनों Okay, के however. के पहले Okay, increase okay. था, बाद में Comparison. Whenever we are comparing, we use however. या कंपैरिजन के लिए. बोथ फ्लक्चुएटेड तो बोथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो कोई वर्ड ही नहीं आएगा. बोथ फ्लक्चुएटेड, वो तो बोथ आ गया, दोनों ने फ्लक्चुएट करा. Hmm. ओके, क्लियर. सो हाउएवर इज अ Yes, sir. कंपैरिजन वर्ड. इट्स I'll take a proper connector class. ये सारे connectors, if you are confused, I'll clarify them again. सारे एक बार इकट्ठे करके I'll do that, but उसके लिए मेरे को एक क्लास लेना पड़ेगा सेपरेट. So can we get the connectors PDF so that we can just revise it, and when you're explaining it, it is a little quite clear No, for sir. us. No, sir. No, sir. You And should. I'll share the PDF should and I'll ta- take the class. I'll do both the things. Okay. Yes, sir. Yes, I'll sir. definitely You do both. should take a class, not Do PDF. the both. PDF. After class, you will provide us PDF. Yeah, Okay. That would be much better. No problem, sir. Yes, sir. I'll do both the things. Not a problem. Okay. देखो पता है क्या है, कनेक्टर्स प्रॉब्लम नहीं है, उनको यूज से ही करना प्रॉब्लम है. Karna is the name. Yeah. Sir, one more question is this. So when we are writing an essay, can we put idiomatic expressions in that while we are writing an essay? Idioms, you mean? Idioms, yes, sir. Idioms. Idioms are informal. Essay writing in IELTS is formal. सारे idioms informal Okay. नहीं होते. 90% of the idioms that we use in IELTS are informal. In English are informal. So idioms are wrong in that sense. Okay, it's so idioms should be only used while we are not speaking Yeah, speaking on is चलता है. speaking. Speaking is semi-formal or informal. So we Slightly cannot use idioms while we are writing essays. You're 90%. not supposed to. 90% of the idioms are informal. 10% formal भी होते हैं. वो चल जाते हैं. Okay, वो चल जाते हैं. Okay. वो चल जाते हैं. You have to So we can Yeah. we can just write, but we have to be very clear what idioms we are using for the particular मैं essay. वैसे बोलूंगा, बहुत लिमिटेड फॉर्मल है, तो अगर कंप्लीटली अवॉइड भी कर दिए जाएं तो ठीक है. पर पता है क्या है, यूल कम हाँ टुमारो कि मैंने 9 बैंड ऐसे पढ़ा, इसमें तो ईडीएम है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ हाँ कि वैसे हाँ फॉर्मल अलाउड है, बट मैं तो यही बोलता हूँ कि मत यूज करो, बिकॉज यूज करो. Okay. मत यूज करो राइटिंग में, बिकॉज पता ही नहीं है तुम्हें. 90% तो नहीं लगेंगे ना, सिर्फ 10% लगेंगे. कौन से लगेंगे, Okay. will not know, हाँ and you are likely to make a mistake. So I just Okay. better safe than sorry. So avoid using idioms. Okay. Okay, sir. Formal language Okay. में idioms नहीं चलते हैं. Formal and IELTS Okay. writing is completely formal. Okay. Okay. So actually, my main concern is like on the writing part, I'm struggling with the pie graph, the bar graph, and all this. Now with your classes, it's getting little clear, so that main the way you will have the use the means the whatever be the data, the trends, and overall be all that methods. So it's getting little easier for me. Yeah. Let's So just thank you. Sir took a very interesting and very informative class maybe last 2 weeks ago. Just watched this video on this website. I'll You share will the get video. all things for the Okay, sir, table can we and pie get that chart. video again so that we can just I Yeah. could It's on just YouTube. It's really shared. You can just check it out. Table graphs. It's a table graphs. Okay. It was very good. It was very good. Okay, so I hope it is clear. I'll give you certain homework to write. Otherwise, Yes, sir. okay, otherwise we are done here. Now there are 5 or 6 graphs remaining that are very atypical, that are very different. I cannot, like, all of them require slightly different thinking. For example, look at this graph. If you get it in the exam, you'll come and tell me ये तो बहुत difficult था, आपने कराया ही नहीं था. मैंने कराया था, तो इसलिए मैं एक बार करवा दूंगा. In the next class, I'll tell you how to do it. It's very simple. So, but give me one more class for this. इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. Let me just teach you that. Similarly, ये वाला ग्राफ है, इसमें मेरे को फ्यूचर वाला एलिमेंट कराना है कि when there are future years, how do we go about that?
बिकॉज आई कैन नॉट से कि इंक्रीज हुआ, वो गलत हो जाएगा। इंक्रीज नहीं हुआ था, इंक्रीज होने की उम्मीद थी। यहाँ तक इंक्रीज हुआ था 2025 तक, 25 के बाद उम्मीद थी। वहां पे लैंग्वेज बदल जाती है। सो द ग्रामर चेंजेस। सर इंग्लिश में उम्मीद थी, ऐसे इसको कैसे इट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट? करा गया था, फोरकास्ट करा गया था, एस्टिमेट करा गया था। दीज आर द वर्ड्स वी यूज। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस वुड इंक्रीज और दिस वुड डिक्रीज। सो वो वैसे लिखना पड़ता है। तो दैट आई शो यू। पक्का नहीं है ना इंक्रीज होगा, ये फ्यूचर है। फ्यूचर इज अनसर्टेन। यू डोंट राइट इंक्रीज होगा, यू राइट इंक्रीज होने की उम्मीद थी। तो वो थोड़ी सी लैंग्वेज सिखानी है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में आएगा साथ में। ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंट है। देन दिस वन ग्राफ विच टॉक्स अबाउट सनशाइन एंड टेम्परेचर, ये भी मेरे को कराना है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इट लुक्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। मैं कराऊंगा तो इजी लगेगा। ठीक है। एंड देन दैट्स इट। दीज आर द 4-5 डिफरेंट ग्राफ्स दैट आई फाइंड अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वंस। एंड एक ये वाला, तो आई डू इट। एक ये था, ये तो मैंने So करवाया। mostly, what kind of graphs are being like? Sir, we don't know if they सबसे might give ज्यादा us a टेबल, graph of. सबसे ज्यादा टेबल पूछते हैं। नंबर 2 पे बार, एंड उसके बाद बाकी सारे। सर sometimes मिल के आता है, that means one bar graph, one table graph, One pie chart one with pie the chart. line graph. या सो आई कवर दैट ऑल्सो। वो हो जाएगा ना। लाइन ग्राफ लिखना आ गया, टेबल आ गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिख लेना। वो क्या, इसमें कुछ भी नहीं होता। इट्स वेरी इजी। Yes sir, yes sir, yes sir. ठीक है। If we will learn how to describe, we can describe anything. यस। Okay, so don't be worried. It will be easy. Okay, so I'll upload the homework for you. You write that. Yes, sir. Have the whole weekend. Abina, yesterday I was a little bit busy and I was not able to give, some of you submitted and I was not able to give feedbacks to all of you. कईयों को मैंने दिया, कईयों को नहीं दिया. So I'll upload the homework in another half an hour. You can write it over the weekend and send, and I'll give you the Yes, feedback. sir. Okay. Okay. Sir, So Monday can we you get since ma'am has sent the essay writing also. So in the essay writing also we can just write in the words like we are not supposed to. Sir, what I mean to say it, we have to write it in a future form or in a presently form. ऐसे राइटिंग में तो प्रेजेंट ही होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। टॉपिक Okay. डिपेंड करेगा। टॉपिक ऐसे Okay. फ्यूचर के बारे में होगा तो फ्यूचर के, फिर वो फ्यूचर के बारे में आ जाएगा। टॉपिक इज अबाउट प्रेजेंट, देन विल बी अबाउट प्रेजेंट। Okay. So one more question is this, while on the speaking classes, यस। so will be getting any kind of like while speaking, I will be getting any kind of practice on that. Speaking is an individual's class, one on. Okay. Okay, so your teacher will Okay. give you the book, and you will be practicing from that book. And so it's Yeah. one-on-one. See, speaking, you can't practice with 10 other people, right? You need to Yes, yes. something to practice. So वो one-on-one है. Uh, When you join that session, so you fix up an individual time with your teacher, and then you have okay. session with them, and then you have that practice material also given to you at that time. Okay. Okay, sir. You're welcome. Okay. sir, Monday you will took the class on Monday, I'll take the class. Reading Monday. If it's reading, ma'am will take. If it's not, I don't think Monday will be writing. Monday will be reading. Reading, ma'am will take. The next class for writing will be Tuesday. So Tuesday I'll take. Okay, sir. Okay. Thank you sir, Okay. thank you very much. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. If you have any doubts, you can message me and ask me. Okay, I'll Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much.